Yes, good evening, student. Today we are going to do the revision of first chapter, transport of food and minerals. Okay, we already discussed this chapter in the previous lectures, but today we are again going to discuss it. Okay, so translocation in the plants and animals. Translocation is what? That it is the process by which the substance is absorbed or synthesized in one part of the plant and translocated to the another part. Okay, so this is the process of absorption, then translocation, ठीक है, transportation of the that material to the various part of the plant. Okay, so xylem and phloem, they conduct this translocation. Okay, so there are the basically the water and minerals are absorbed by the roots, so xylem work over there, ठीक है, and the lateral roots bear large number of finger like outgrowth root hair. So basically roots absorb water, but roots contain the root hair. Okay, so they help in the absorption of water. Efficiency of water absorption by the root depend upon the large surface area provided by the numerous root hairs. So root hairs basically they provide the large surface area. Okay, it basically the large surface area. So there are the many processes here. The root hairs have the membrane. This is facilitated by the cell membrane, which is semi-permeable. So semi-permeable cell membrane is basically the semi-permeable. So semi-permeable membrane क्या होती है? Which allow only the selected substances to move inside or outside. Okay. So osmosis. In this chapter, we should know that osmosis, it is a process, the absorption of water through the root hair. Occur through the process of osmosis. Osmosis is a process by which the water molecules move from the region of their higher concentration to their lower concentration, but this is through the semi-permeable membrane. Okay, so this is the different from the diffusion. Okay, so here is a from the higher concentration to the lower concentration through the this is the semi-permeable membrane. So by this it is called the osmosis. Okay, so osmosis, here you can check the osmosis. क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉइल पार्टिकल्स एंड वाटर इज देयर, सो इट द वाटर मूव इनसाइड थ्रू द सेमी परमिएबल बाय द osmosis, process of osmosis. Okay, here is the translocation by the root hair is shown over here. Okay, we already discussed this, but the next topic is the diffusion basically. So diffusion is the movement of molecules of solid that in the case of the osmosis only liquid can, water can move. Here solid, liquid and gases from their region of higher concentration to the region of their lower concentration until the concentration is equal. तो यहाँ पे concentration जब तक equal नहीं होती, diffusion होता रहता है, कोई semi permeable membrane यहाँ पे नहीं होती. The third is the active transport in this chapter. The active transport is the movement of molecules, basically again the solid and liquid, ठीक है, from the across the cell membrane from the region of their lower concentration. अभी तक diffusion और osmosis में क्या था? Higher concentration to the lower concentration, but here from the lower concentration to the higher concentration done by the to the region of their higher concentration. This is a process अगर against the concentration gradient. तो यहाँ पे एनर्जी हमें प्लांट को यूटिलाइज करनी पड़ती है, तो प्लांट जो है वो इसको परफॉर्म कर पाता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन. ये सेम वैसे होता है जैसे आपने नीचे से पानी टैंकी में चढ़ाना, तो क्या है, आपको मोटर ऑन करनी पड़ती है, ठीक है, तो ही पानी ऊपर जाता था. सेम वेस्कुलर बंडल्स. तो वेस्कुलर बंडल्स जो है हमारे पास टू टाइप ऑफ बंडल्स आर देयर, जाइलम एंड द फ्लोएम. तो जाइलम जो है दैट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट द मटीरियल टू द अपवर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट. सो वाटर बेसिकली वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. इट इज़ अ कम्प्लेक्स टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फ्रॉम द रूट्स फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. लोकेटेड सेंट्रली, सेंटर में होता है, ठीक है, इन द बॉडी एंड कंसिस्ट वेसल्स होती हैं, ट्रैकियार्ड्स होती हैं, जाइलम होता है, पैरेन्काइमा होता है, जाइलम सेक्रेन्काइमा होता है, ठीक है. तो जाइलम बेसिकली क्या है, वाटर की कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसलोकेटेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. ऐसे ही फ्लोएम है. फ्लोएम इज अगेन द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बट इट हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड. ओके,
फूड कहाँ, लीव्स में प्रिपेयर करा जाता है, तो लीव्स से फूड को लेके पूरे बॉडी के पार्ट्स को जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या, इट कंप्राइज्ड ऑफ द सीड्स, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम सेक्रेन्काइमा इज देयर। So these are the elements of the xylem and phloem. This you should know about it. Then third topic is the ascent of sap. Ascent of sap क्या होता है? The water absorbed by the roots along with the minerals. ठीक है, जब वाटर मिनरल के साथ अब्जॉर्ब करा जाता है तो दिस इज द टर्म एज अ सैप। द मूवमेंट ऑफ सैप मीन्स की वाटर विद मिनरल्स फ्रॉम द रूट सेल्स टू द जाइलम थ्रू द जाइलम इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। रूट सेल से जाइलम के थ्रू जो होता है दैट इज द एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ट्रांसपीरेशन। बेसिकली ट्रांसपीरेशन क्या, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द, दिस इज द एरियल पार्ट्स, लीव्स से, ठीक है, फूलों से, पत्तियों से, जो स्टेम से वाटर लॉस जो होता है दैट इज़ द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, यही कारण है कि प्लांट का जहाँ पे छाया होती है वहाँ पे ठंडक रहती होती है। तो ट्रांसपीरेशन बेसिकली क्या करता है, एक सक्शन पंप क्रिएट करता है, ऊपर से वाटर वेपोरेट होता है और नीचे से वाटर खींच के उसको और सक करके, जैसे हम स्ट्रॉ के साथ सक करते हैं, ऐसा ही कुछ ट्रांसपीरेशन क्रिएट करता है, एक ट्रांसपीरेशन पुल। तो सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली ट्रांसपीरेशन की? सबसे पहले तो हीट जो है उसको बियर प्लांट के इर्द गिर्द के वातावरण को ठंडा करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ठंडा रखता है। उसके बिना मिनरल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर ब्रांचेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्ट करने वाला सनलाइट, अगर ज़्यादा सनलाइट तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगी, विंड स्पीड ज़्यादा तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपीरेशन कम होगी। यू शुड नो अबाउट इट। इसके बाद है हमारा मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। तो यहाँ पे मिनरल्स हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अदर आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स दे रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, तो ये बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होते हैं। एंड सम आर द मिनरल्स दैट एक्सट्रीमली द प्लांट नीड एक्सट्रीमली इन अ स्मॉल क्वांटिटीज दैट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो यू हैव टू लर्न द चैप्टर, okay, day after tomorrow you have a UT, so prepare this chapter for the UT, okay.